Okay, so let me quickly revise our unit 1. Okay, so in our unit 1 we have started from the biological neural network. Okay, then we slowly approach to the artificial neural network. Okay, then how to find output है ना, यूजिंग एक्टिवेशन फंक्शन एंड ऑल, नेट इनपुट से आपको फाइनल आउटपुट मिल जाता है यूजिंग एक्टिवेशन फंक्शन. सो हाउ यू फाइंड द आउटपुट ऑफ अ गिवन एन एन मॉडल. ओके, दैट इज ऑल्सो वी हैव कवर्ड. ओके, नाउ टू एडजस्ट or to fit a given data with the ANN model, we need to do some adjustment in say weights, you know, in bias or in activation function. Okay, so we cover that part also. So basically our major focus is on the weight adjustment. Okay, so for that we have different learning rules, you know, so that also we have completed different learning rules. Next part is, and the last part is I think back propagation. Okay, this is the content of our unit 2. क्लियर. सो यहाँ तक हमने अभी तक कंप्लीट किया है. नाउ विल स्टार्ट. ओके, इन टुडेज लेक्चर विल स्टार्ट आवर सेकंड यूनिट विच इज न्यूरल नेटवर्क फॉर कंट्रोल. ओके, सो in that our first topic is error calculation methods. Okay, which we also call it as cost function. I think अगर आपने कहीं पे ये वर्ड सुना है cost function और cost error, we also call it as cost function. Okay, in machine learning or any other cases you may find this one. Okay, so what are the different errors, okay, which are present in the given ANN model. Okay, तो अभी तक जो error आपने देखी थी, can you tell me how you find error in a given ANN model? क्योंकि last time हमने error ये calculate की है. So what is the error present in the given ANN model? जो आपने अभी तक देखी है, हमने एक प्रॉब्लम लिया था बैक प्रोपगेशन में कि फाइंड टोटल एरर प्रेजेंट इन द गिवन एनएन मॉडल. ओके, इफ आई क्विकली ड्रॉ अ एनएन मॉडल like say this. Okay, this is my input x1, this is my input x2, and this is my y. Okay, and we have given some targeted output yt. So can you tell me what is the total error present in the given model? क्या था फॉर्मूला, किसी को याद आ रहा है? How you find error present in the given model? Yes, this part we already completed. We have completed in back propagation case also. So can anyone tell me what is the formula for total error present in this given model? Yes. So half into targeted by minus y square. Correct. Square. Yes. Yes, very good. Okay, so this error is called as mean square error. Okay, so unit 1 में जो error का हमने फॉर्मूला यूज किया था, okay, मीन स्क्वायर और सम ऑफ स्क्वायर, मीन स्क्वायर में भी नहीं बोल सकते, जिससे एक्चुअली इसको थोड़ा मैंने चेंज किया. हाँ, सम ऑफ स्क्वायर एरर हमने ये पहला फॉर्मूला उस केस में यूज किया था. मीन में बस क्या चेंज होगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बाद में. ठीक है, तो उस टाइम पे जो एरर का फॉर्मूला हमने यूज किया था वो फॉर्मूला कौन सा था? सम ऑफ स्क्वायर एरर. ओके, और आपको मैंने क्लियर भी किया था व्हाई वी नीड टू डू दिस एडजस्टमेंट, व्हाई वी कंसीडर वाई टी माइनस वाई होल स्क्वायर, है ना, जस्ट टू अवॉइड अ साइन पार्ट, व्हाई वी कंसीडर दिस 1/2 फैक्टर. ओके, जस्ट टू एडजस्ट अवर डेरिवेटिव्स. ओके, दिस आर द रिक्वायरमेंट्स टू फिट विद दिस फॉर्मूला. ठीक है, तो यूनिट 1 में जहां पे भी हमने एरर कैलकुलेट की थी वहां पे हमने यही फॉर्मूला यूज किया था. बट रिमेंबर, दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द error calculation. ये error, there are different methods by which we can find the error present in the given ANN model. Okay, उसमें से ये एक मेथड थी. Okay, that is nothing but sum of square error, SSE. Okay, now there are different methods. Okay, not only these three. Okay, और भी बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेज है जिसका यूज करके आप एरर कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, तो अभी ये जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट 2 में, यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक में हमें बस क्या लर्न करना है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, व्हाट आर द डिफरेंट और व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मूलेज बाय विच वी कैन फाइंड द एरर प्रेजेंट इन द गिवन ANN मॉडल. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक में हमें क्या लर्न करना है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मूलेज बाय विच वी कैन फाइंड द एरर प्रेजेंट इन द गिवन मॉडल. ओके, सो लेट मी स्टार्ट दैट नाउ. So error calculation occur at 2 level. Okay, so you must know what is the meaning of local error and global error. मैं आपको इसको एक सिंपल वे से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये लोकल एंड ग्लोबल ये वर्ड्स ऑलरेडी आपने यूज किए थे. कहाँ पे? कैन एनीवन टेल मी वेयर वी हैव यूज दिस वर्ड्स ऑलरेडी? इन मैथ्स ओनली, M1 M2 M3 में, या कहीं पे ना कहीं पे आपने ये वर्ड्स ऑलरेडी यूज किए होंगे, या एटलीस्ट फैकल्टी ने इंट्रोड्यूस तो किए होंगे. सो कैन यू टेल मी वेयर वी नीड टू यूज दिस वर्ड्स, लोकल एंड ग्लोबल?
Any idea? Any idea? Okay, so let me explain with one simple graph. Okay, so if I draw a graph like this, okay, assume this is one curve. Okay, uh, so can you tell me what are and let me take this point as okay, let me highlight by another color. Yeah, so let me take this point as say capital A, this point as capital B, this point as capital C, uh, this point as capital D. Okay, now can you tell me what are the local minima for this given curve? Okay, you have to just tell me what are the local minima present for this given curve. Yes, what are the local minima? वर्डिंग से आप कनेक्ट करने की कोशिश करो. व्हाट आर द लोकल मिनिमा प्रेजेंट इन दिस गिवन कर्व? A, B, C, and D. Okay, A, B, C, all these are actually the local minima present in the present for a given curve. And what is the global minima? C. Very good. Global minima is C. So can you now tell, can you define now what is the difference between local error and global error? Just from this, can anyone tell me a definition of what is the local error and what is the global error? It is totally depend on the word itself. Word से ही आपको समझ में आना चाहिए कि what is the meaning of local minima and what is the meaning of global minima. So can anyone tell me a definition of local error and global error? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोलो. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि जो मैंने यहाँ पे दिया उस हिसाब से मुझे चाहिए. सो ग्लोबल एरर क्या होगी? ग्लोबल एरर क्या होगी? यहाँ पे ग्लोबल मिनिमा का मीनिंग क्या है? इट इज एक्चुअली मिनिमा फॉर द एंटायर कर्व. क्लियर ना? ग्लोबल मिनिमा इज एक्चुअली अ मिनिमा फॉर द एंटायर कर्व. अगर आप एंटायर मॉडल कंसिडर करते हो या एंटायर कर्व अगर आप कंसिडर करते हो, उसमें जो एरर प्रेजेंट होगी या उसमें जो मिनिमा प्रेजेंट होगा, दैट बिकम योर ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल एरर. ठीक है. एंड व्हाट इज द लोकल एरर? एंड व्हाट इज द लोकल एरर? Sir, errors at each individual output. Yes, error at each point you can say. Okay, error at each point. Okay, I can also show you this using a regression curve, but आपका regression topic नहीं हुआ इसलिए मैं ज़्यादा इसमें in detail में नहीं जाने वाला हूँ. Okay, if I consider a graph of say आपका अभी मैं y और yt का ग्राफ एक्सप्लेन करने वाला हूँ. So this is my y, for example, if this is my y, ये आपने कैलकुलेशन किया है. ठीक है. और जो टारगेटेड वैल्यूज थे वो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. व्हाट आर द टारगेटेड पॉइंट्स? अभी इसमें आई विल ड्रॉ फ्यू टारगेटेड पॉइंट्स, है ना. ये आपके टारगेटेड पॉइंट्स थे लाइक दैट. ठीक है. तो अभी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि द 3 टारगेटेड पॉइंट्स आर एक्चुअली लाई ऑन दिस वाई. ओके, दिस इज योर वाई. आपने कैलकुलेट किया. ये सारे जो पॉइंट्स है ये सारे वाई टी है. ओके, बट देयर आर सम आउटलायर्स प्रेजेंट इन दिस गिवन केस. ओके, यहाँ पे कुछ आउटलायर्स है, ऐसे कुछ पॉइंट्स है. ओके, जो फॉर एग्जांपल इस केस में देखो, इस केस में आपका वाई कैलकुलेशन ये आ रहा है. ओके, और आपका वाई टी आ रहा है. तो इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है. दे आर नॉट इक्वल. तो यहाँ पे क्या होगी? एरर प्रेजेंट होगी. सो दिस इज द एरर, है ना. तो इस केस में इस पॉइंट के लिए ये आपकी एरर होगी, है ना. तो इस पॉइंट के लिए ये आपकी एरर होगी क्योंकि यहाँ पे y और yt का कैलकुलेशन इक्वल नहीं आ रहा. सारे के सारे पॉइंट्स अगर आपके इस लाइन पे आ जाते हैं ना, देन वी कैन से दैट देयर इज नो एरर प्रेजेंट इन द गिवन मॉडल. इफ ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन दिस लाइन, देन देयर इज नो एरर प्रेजेंट इन द गिवन मॉडल. बट देयर आर सम आउटलायर्स, देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच आर नॉट लाइंग ऑन दिस y, देयरफॉर एरर इज प्रेजेंट. ओके, तो आप क्या कर रहे हो? अगर ये सारे लोकल एरर, दिस आर कॉल्ड एज लोकल एरर करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट्स और इंडिविजुअली जो आप एरर कैलकुलेट कर रहे हो, दिस आर कॉल्ड एज लोकल एरर. ओके, और लोकल मिनिमा आपने कैसे कैलकुलेट किया? लोकल एरर का पार्ट समझ में आ रहा है? लोकल, सारे लोकल एरर्स को अगर आप ऐड करते हो या एग्रीगेट करते हो, देन यू विल गेट द ग्लोबल एरर. सिंपल मीनिंग. ओके, सारे पॉसिबल लोकल एरर्स को अगर आप ऐड करते हो, एग्रीगेट करते हो, देन यू विल गेट द ग्लोबल एरर. सो लोकल एरर इज रिलेटेड विद अ स्पेसिफिक पार्ट और स्पेसिफिक पॉइंट, एंड ग्लोबल एरर इज फॉर द एंटायर मॉडल. दिस इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन लोकल एरर एंड ग्लोबल एरर. नाउ माय लास्ट क्वेश्चन, हाउ यू, अब ये आउट ऑफ द
सिलेबस क्वेश्चन है, बट कैन एनीवन टेल मी कि आपने ये लोकल मिनिमा, क्योंकि सी ग्लोबल एरर वी कैनॉट फाइंड ग्लोबल एरर डायरेक्टली, क्लियर, वी कैनॉट फाइंड ग्लोबल एरर डायरेक्टली। ग्लोबल एरर कैलकुलेट करने के लिए आपको सारे लोकल एरर कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ओके, सो ग्लोबल एरर तभी आपके पास आ जाएगी जब आपके पास सारे लोकल एरर्स आ जाते हैं, ठीक है। सो कैन यू टेल मी हाउ वी फाइंड द लोकल, अभी एरर के लिए नहीं बोल रहा हूं, हाउ वी फाइंड द लोकल मिनिमाज फॉर अ गिवन कर्व। आपने कैसे कैलकुलेट किया था, किसी को कुछ याद है इसमें? इसका अभी इससे कोई कनेक्शन नहीं है, बट कैन यू टेल मी हाउ वी फाइंड ऑल द लोकल मिनिमाज फॉर अ गिवन कर्व इन मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक? कैसे आपने कैलकुलेट किया था, कुछ याद है? इफ दिस इज माय कर्व y फॉर एग्जांपल, हाँ, जस्ट फॉर इंटरेस्ट में बोल रहा हूं, आपने ये सारे लोकल मिनिमाज कैसे कैलकुलेट किए थे मैक्सिमा मिनिमा के टॉपिक में? अगर आपने 12th में लर्न किया तो 12th का बोलो, या M2 में कहीं पे आपने एक एप्लीकेशन लर्न किया तो वो आप उससे भी कनेक्ट करके बोल सकते हो। कैसे कैलकुलेट किया था, एनी आइडिया? आपने क्या किया था? डेरिवेटिव इक्वल टू 0 सेट किया था। इसका मीनिंग क्या होता है? व्हेन आई कंसिडर dy by dx एट 0 एंड कैलकुलेट x फॉर दैट, इसका मीनिंग क्या है? ऐसे सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करो जहां पे स्लोप आपका क्या है, 0, करेक्ट ना? यस और नो? यस। ऐसे सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करो जहां पे स्लोप आपका 0 है। इसका ही मीनिंग क्या होता है? आप वो सारे लोकल मिनिमाज और मैक्सिमाज कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। दैट इज नथिंग बट अ स्टेशनरी पॉइंट्स, इफ यू रिमेंबर। ओके, सो ये जो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा का जो पार्ट था ना, ये आपने कैसे कैलकुलेट किया था? यूजिंग स्टेशनरी पॉइंट्स, ओके, इन अ टॉपिक ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, सो I think this much introduction is enough. So again, let me quickly revise what I mean by local error. Local error का meaning क्या होता है? Local error is the error present for a specific part or a specific point. Okay, and if you aggregate or if you take sum of all the local errors, then only you will get the global error. ठीक है? So this is the difference between local error and global error. Now, एरर का फॉर्मूला आपको पता ही है, ओके, सो उसमें वो तो चेंज नहीं होने वाला। एरर का फॉर्मूला क्या है? इट इज एक्चुअली डिफरेंस ऑफ योर टारगेटेड आउटपुट एंड योर एक्चुअल आउटपुट। ये सारे केस में सेम ही रहने वाला है। टारगेटेड आउटपुट आपका एक होता है, आपका एक्चुअल आउटपुट होता है, उन दोनों का जो भी डिफरेंस है दैट बिकम योर एरर, ओके। एंड ऑल द लोकल एरर्स आर एग्रीगेटेड टुगेदर टू फॉर्म अ ग्लोबल एरर। आपको मैंने पहले ही बोला है, वी कैनॉट फाइंड डायरेक्टली अ ग्लोबल एरर, बट फॉर अ ग्लोबल एरर we first need to find the local error present in the given model. Okay, now the global error is the measurement of how well a neural network perform to the entire training set. Okay, अभी ये तो clear है। If you find a global error for a given neural network, okay, then only you will come to know that how that model is going to work for that particular problem, है ना? क्योंकि जितनी एरर आपकी लेस होगी उतना आपको समझ में आएगा कि now my model is perfect. Okay, I can start working on this particular model. ठीक है, सो बेसिकली एरर एक ऐसा टूल है जहां से आपको यह समझ में आएगा कि आपका मॉडल कितना फिट हो रहा है फॉर अ गिवन पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। सो दैट यू विल कम टू नो ओनली फ्रॉम अ एरर। नाउ, सो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड वन टाइप ऑफ एरर, जो यूनिट 1 में जहां पे भी हमने एरर का फॉर्मूला यूज किया था। लेट मी रिवाइज अगेन। तो वो एरर का फॉर्मूला ये था 1/2 yt minus y whole square. This is also called as sum of square error. This is also called as sum of square error. Okay, so ये एक टाइप था, but there are different there are some other formulas also by which we can find the global error present in the given model. Okay, so next formula is mean square error and the third formula is root mean square error. Okay, so we'll see one by one. Okay, and I will also take some examples on each part. ये ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, हर एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क के लिए यहाँ पे आने वाला है। ये ज़्यादा लेंदी टॉपिक भी नहीं है, सिंपल। आपको मैं डाटा दूंगा, आपको मैं टारगेटेड आउटपुट दूंगा, आपको मैं एक्चुअल आउटपुट दूंगा, एंड फ्रॉम दैट यू जस्ट नीड टू फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर एरर, mean square error and the root mean square error present in the given model. Okay, so let me start from the first case, okay, which is sum of square error. Okay, so it is actually a squared difference of targeted output and actual output. Okay, so obviously आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे 1/2 क्यों नहीं लिया है। ओके, तो आपको मैंने उस टाइम पे भी क्लियर किया था 1/2 इज जस्ट द एडजस्टिंग फैक्टर. It is just the adjusting factor. So if you take that 1/2 here also, then also it is correct, and if you skip that factor, then also it is correct. Are you getting my point?
if you remember in a previous lecture why I consider that 1/2, it is just the adjustment factor in case of derivative. तो अगर आपने यहाँ पे ये सेम सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपने ऐसे भी लिखा ना तो भी मैं आपको मार्क्स देने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट. Now why I consider summation? Can anyone explain me why I consider summation? Because this gives me local या global. लोकल एरर. ग्लोबल. नहीं ई का जो फॉर्मूला है यहाँ से आपको ग्लोबल एरर मिलने वाली है या लोकल एरर मिलने वाली है. ये जो फॉर्मूला मैंने लिया है यहाँ से मुझे लोकल एरर मिलने वाली है या ग्लोबल एरर मिलने वाली है. ग्लोबल है ना, इसलिए समेशन लिया. समेशन में क्या करना पड़ता है, मुझे सारे लोकल एरर को ऐड करना पड़ता है. ठीक है, सो रिमेंबर यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले मैं आपको दे रहा हूँ उसमें समेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि आप सारे लोकल एरर्स को ऐड कर रहे हो. ओके, तो ये हो गया समेशन का पार्ट. 1/2 का भी मैंने एक्सप्लेन किया है. अगर आप वो बस एक एडजस्टमेंट फैक्टर है. इफ यू कंसिडर हियर देन आल्सो इट इज फाइन. इफ यू स्किप दैट फैक्टर देन आल्सो इट इज फाइन. ओके, उसका इतना कुछ मेजर रोल नहीं है. ओके, प्रीवियस केस में हमने बस एडजस्टमेंट करने के लिए किया था. ठीक है, तो आप एग्जाम में भी एसएससी में स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर एरर के केस में इफ यू कंसिडर दैट फैक्टर या विदाउट फैक्टर यू विल गेट द मार्क्स. उसमें उसका इतना कुछ मेजर रोल नहीं है. एंड यू कैन अगेन सी दिस डायग्राम. ओके, सो इफ दिस इज माय वाई एंड दिस आर okay, and almost except 1 2 3 4 and 5. Okay, except this 1 2 3 4 and 5, all the points are lie on y except this 5 point. बाकी सारे points, बाकी सारे y's एक्चुअली आपके y पे ही आ रहे, तो वहां पे एरर आपकी जीरो होगी. जो पॉइंट आपके y लाइन पे जो पॉइंट्स आपके y लाइन पे आ रहे वहां उसके लिए उन y's के लिए आपकी एरर जीरो होगी. ओके, एरर जो प्रेजेंट होगी दैट एरर इज प्रेजेंट ओनली बिकॉज ऑफ दिस 5 आउटलायर्स. ओनली बिकॉज ऑफ दिस 5 आउटलायर्स. ओके, तो यहाँ पे आपका फाइनल एरर का फॉर्मूला क्या होगा. ओके, सो इस पॉइंट के लिए एरर कैलकुलेट करो. सो y minus yt whole square plus y minus yt whole square, y minus yt whole square and y minus yt whole square. ऐसे 5 टाइम्स आपको इन एरर्स को ऐड करना है. दैट इज नथिंग बट द टोटल एरर प्रेजेंट फॉर दिस गिवन मॉडल. ठीक है, तो फॉर्मूला ये ऑलरेडी हमने यूज किया था, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी. नाउ लेट मी टेक वन एग्जांपल कि एग्जाम में आपको ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चंस कैसे आने वाले. सो इस टाइप का क्वेश्चन होगा, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर एरर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग डाटा. सो हियर वी हैव गिवन the actual calculation or actual output. Also we have given the targeted output which is yt. Okay, and calculate the sum of square error present. So the formula is summation yti minus yi whole square where I runs from 1 to n. Okay, तो यहाँ पे आप देखोगे there are only 1 2 3 4 and 5. There are only 5 observation. तो ये होगा आपका, this is your yt1, this is your yt2, this is your yt3, this is your yt4, this is your yt5, this is y1 y2 y3 y4 and y5. okay, now just तो ये जो कैलकुलेशन है ये आपको एक डायरेक्टली टेबल से भी आप शो कर सकते हो. सो दिस टेबल इज आल्सो इनफ ओके फॉर द एक्सप्लेनेशन. इस टेबल में ही टोटल आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हो. तो एग्जाम में भी आप इस फॉर्म में ही लिखो. तो मैंने क्या किया आप देखो, I keep the values of y as it is, values of yt as it is. Then in next column I calculated the difference yt minus y का जो डिफरेंस है वो मैंने कैलकुलेट किया है. फिर उसके बाद मैंने उसका स्क्वायर किया. तो आप डायरेक्टली ये भी कॉलम कंसिडर कर सकते हो क्योंकि कैलकुलेशन में इजीली हो जाएगा. ओके, सो yt माइनस y होल स्क्वायर के ये सारे वैल्यूज है ना, बट तो आपको ये सारे वैल्यूज ऐड करने, देन यू विल गेट द टोटल एरर प्रेजेंट इन द गिवन मॉडल. क्लियर? तो आपको एक्सप्लेनेशन इस टेबल के फॉर्म में ही देना है. एग्जाम में 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आने वाला है, तो आपको एक्सप्लेनेशन टेबल के फॉर्म में ही देना है. क्या करना है, हर एक पॉइंट के लिए एरर कैलकुलेट करो, हर एक पॉइंट के लिए yt माइनस y होल स्क्वायर कैलकुलेट करो, उनके एडिशन करो. दैट इज नथिंग बट द टोटल एरर प्रेजेंट इन द गिवन मॉडल. ओके, और द सम ऑफ स्क्वायर एरर प्रेजेंट फॉर द गिवन मॉडल. क्लियर? एनी डाउट? समझ में आ रहा है ये पार्ट? Yes or no? Yes sir. Okay. And yeah, so this is the first case. Okay, एक ही एग्जांपल मैंने लिया है और मैंने क्या किया है, ये एक ही एग्जांपल में सारे केस में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. Why? So that you will come to know कि वैल्यूज आपकी कैसे चेंज हो रही है. तो आप याद रखो
फर्स्ट केस में जो या सम ऑफ स्क्वायर एरर से जो हमें रिजल्ट मिल रहा है उसका आंसर क्या है 30.4। अभी आपको आगे आगे समझ में आएगा कि ये नंबर, ये जो एरर की वैल्यू है कैसे लेस होती जाएगी। तो सेम प्रॉब्लम में रखने वाला हूँ तीनों केस में, एंड इन ऑल थ्री केसेस वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर, वी नीड टू फाइंड द एरर यूजिंग द डिफरेंट फॉर्मूलेज। ओके, ये था आपकी पहली केस। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपको 3 मार्क के लिए आने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर एरर इज मीन स्क्वायर एरर। इसमें बस इतना ही चेंज है, यहाँ पे जो फैक्टर आप लेने वाले हो वो फैक्टर आपको क्या लेना है 1/n। ओके, सो उसका भी रीजन मैं आपको बोलता हूँ। ओके, इसका टाइटल क्या है, मीन स्क्वायर एरर। तो आप मीन कैसे कैलकुलेट करते हो, मीन कैसे कैलकुलेट करते हो आप, हाउ यू फाइंड मीन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, है ना, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जनरल, इन जनरल। तो मीन में क्या करते हो आप, जितने भी आपके गिवन ऑब्जर्वेशंस थे उन ऑब्जर्वेशन से आप उसको डिवाइड करते हो, है ना। मीन में क्या होता है, जनरली जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे आपको डिवाइड करना। तो सेम लॉजिक यहाँ पे यूज करना। तो इसलिए मीन स्क्वायर एरर में तो वर्डिंग से भी समझ में आना चाहिए, जो एरर आपकी आएगी, सम ऑफ द एरर, सम ऑफ द स्क्वायर एरर जो आपकी आएगी, है ना, YTI माइनस YI होल स्क्वायर एंड दैट सम। तो उस टोटल सम को आपको डिवाइड किससे करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मीन स्क्वायर एरर। ये एक पावरफुल फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा यूज होता है ANN मॉडल में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यही एक फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज होता है एरर कैलकुलेशन में। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया। आपको बस करना क्या है, वो YTI माइनस Y होल स्क्वायर या वो जो सम है ना, उसको बस आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। सो लेट मी टेक वन मोर प्रॉब्लम ऑन दिस केस। तो सेम फॉर्मूला मैंने रखा है या सेम डाटा मैंने लिया है, बट यहाँ पे क्वेश्चन को मैंने क्या चेंज किया है, फाइंड द मीन स्क्वायर एरर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सोल्यूशन जो आपको देना है टेबल के फॉर्म में ही देना है। दिस इज माई Y, दिस इज माई YT, टेक द डिफरेंस YT माइनस Y, take its square. Okay, so this is the square part, and now divide its sum, मतलब this plus this plus this plus this plus, इसकी जो सम है इसको आपको किससे डिवाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। बट कितने ऑब्जर्वेशन थे, 1 2 3 4 5, तो आपको किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो सम आई थी वो क्या आई थी 30.4, आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी। तो इसको आपको डिवाइड करना है 30.4 को किससे डिवाइड करना है, 5 से। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन स्क्वायर एरर। तो आप देखो फर्स्ट जो था सम ऑफ स्क्वायर एरर, उस केस में आपका आंसर था 30.4। नाउ मीन स्क्वायर एरर, अभी आपका आंसर क्या है 6.08। तो आप देखो एरर की वैल्यू कितनी लेस हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि एरर लेस हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है उसमें कितना चेंज आ रहा है। ओके, और जितना नंबर आपका लेस होगा उतना कंपटीशन आपका प्रॉपर हो जाएगा, या उससे उतना जल्दी एडजस्टमेंट आपकी हो जाएगी। ठीक है, ओके, सो दिस इज द सेकंड केस, मीन स्क्वायर एरर। ओके, नाउ लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। ओके, मैं आपको अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो कैलकुलेट द मीन स्क्वायर एरर प्रेजेंट फॉर दिस गिवन मॉडल। ट्राई करो जल्दी, यू टेल मी द फाइनल आंसर। कैलकुलेट द, सॉरी यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, लेट मी टेक मीन स्क्वायर एरर। फाइंड द मीन स्क्वायर एरर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग डाटा। डू इट, करो मुझे और बोलो आपका फाइनल आंसर क्या है, अभी करो। आपको करना है पहले YT माइनस Y होल स्क्वायर का कॉलम, और फिर 1/n समेशन ऑफ I रनस फ्रॉम 1 to n YT माइनस Y होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है, फाइनल आंसर। बोलो मुझे करके फाइनल आंसर बोलो, प्लीज डू इट फास्ट। ये इजी, आप ओरली भी कर सकते हो। क्या आएगा, 10 माइनस 9, डिफरेंस 1 है, 1 का स्क्वायर 1। 13 माइनस 4, डिफरेंस 1 है, 1 का स्क्वायर 1। 14 माइनस 2, डिफरेंस 2 है, 2 का स्क्वायर 4। 9 माइनस 10, डिफरेंस 1 है, 2। जस्ट ऐड दिस नंबर, सो 4 प्लस 4 8, 9 10 11।
11 बाय वॉट 1 2 3 Five. 4 5, तो क्या आंसर आएगा ये 2.02 हाँ 2.2 ना 2.2. हाँ 2.2 ठीक है 11 बाय 5 ना 2.2 क्लियर। तो ऐसे आपको 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आएंगे। एंड व्हाट इज द सो या इन दिस केस MSC मीन स्क्वायर एरर इज 2.2, व्हाट इज द SSC सम ऑफ स्क्वायर एरर, व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर एरर, हाँ 121 by 5. अरे नहीं सम ऑफ स्क्वायर एरर 11 11 ना यस सर। हाँ सम ऑफ स्क्वायर एरर का मीनिंग क्या होता है, yt माइनस वाई का जो yt माइनस वाई स्क्वायर की सम करो, इतना ही। ओके तो ये इसकी जो सम आ रही थी ना, ये जो क्वेश्चन ये जो सम आती है दैट इज नथिंग बट सम ऑफ स्क्वायर एरर, रिमेंबर ऑलवेज। लास्ट में भी फिर से देखा तो ये इसकी जो सम है ना yt माइनस वाई, ये सम बेसिकली आपकी क्या है सम ऑफ स्क्वायर एरर है, ठीक है। सो 11 एक्चुअली SSC की वैल्यू थी, उसको अगर आप 5 से डिवाइड करते हो यू विल गेट द MSC। ओके सो वी कैन राइट लाइक दिस ना, MSC इज इक्वल टू बोलो now what is the relation between these two things, so what is MSC is equal to SSC divided by total number of observation, clear, yes or no, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि नहीं। Yes sir. Now let me move to the next topic, okay, which is root mean square error, ठीक है, RMS error, ठीक है। ये तो आपको समझ में आएगा कि आगे आगे जैसे आप आगे जाओगे ना, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के लिए सम ऑफ स्क्वायर एरर, ओके, ये 30.4 आ रहा था, उसमें ही MSC की वैल्यू जो थी वो 6.08 थी, ओके। अभी नेक्स्ट केस में मैं कैलकुलेट करके देने वाला हूँ सेम प्रॉब्लम के लिए, तो अब आपको इन तीनों में डिफरेंस समझ में आएगा। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज व्हाट, तो जो आपकी MSC की वैल्यू है, ओके, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर ये MSC का फॉर्मूला है, जस्ट टेक अ स्क्वायर रूट ऑफ द MSC मीन स्क्वायर एरर का आपको बस क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। सो इन जनरल यू कैन से RMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ MSC, okay, and what is MSC is equal to SSC divided by total number of observation, remember these things, okay। So now just take a square root of that MSC value, you will get the root mean square error। तो मैं फिर से वही फॉर्मूला रख रहा हूँ, है ना, एंड yt माइनस वाई होल स्क्वायर का ये कैलकुलेशन था, सेम कैलकुलेशन है। तो अभी आपके पास जो MSC की वैल्यू थी, MSC की वैल्यू क्या थी, इसको आपने डिवाइड किया था 5 से, उसका आपको अंडर रूट लेना है, ठीक है। सो दैट नंबर इज 2.47, ओके। सो लेट मी अगेन शो यू द कैलकुलेशन। सो ये सेम प्रॉब्लम था, उसके लिए SSE की वैल्यू आपकी थी 30.4 समथिंग, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। MSC की जो वैल्यू थी 6.08 कुछ तो आ रही थी, एंड RMS की जो वैल्यू है, RMS की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 2.47। तो आप देखो ये हमेशा ऐसे रिलेशन में आने वाला है। सो RMS एरर जो होगी, ओके, उसका नंबर हमेशा लेस होगा, ठीक है। और आपको मैंने पहले ही बोला है कि जितना नंबर ये लार्ज होगा उतना एडजस्टमेंट में टाइम जाएगा, ओके। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू गो विद RMS एज पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द ऑथर प्रेफर और मोस्ट ऑफ द रिसर्चर प्रेफर इस MSC एरर मीन स्क्वायर एरर। अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ज़्यादातर केस में उन्होंने MSC एरर ही कैलकुलेट किया। नॉट ओनली दिस, मैटलैब में भी जो आप अभी रेडीमेड फॉर्मूले करने वाले हो तो वहाँ पे भी आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे भी उन्होंने MSC एरर ही कैलकुलेट करके दी है। ये डायरेक्टली कैलकुलेट होकर आता है, आपको स्पेसिफिकली कैलकुलेट नहीं करना है, तो आपको MSC एरर भी वहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। सो विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। तो यही सेम एग्जाम्पल है जो मैंने सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिया था, ओके। यहाँ पे आप देखो तो इस केस में MSC की वैल्यू क्या थी, 2.2 थी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RMS इन दिस केस, आंसर मैंने दे दिया है, बट आंसर क्या आने वाला है, 2.2 का अंडर रूट, करेक्ट ना, यस और नो, यस सर। ओके। तो ये इजी कैलकुलेट करना, इतना डिफिकल्ट नहीं है,
ओके, तो ये था आपका पहला पार्ट. ओके, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर और डिफरेंट formulas to find the error present in the given ANN model. Okay, so some of the squared error, mean square error and root mean square error. Okay, remember this, at least these three formulas. There are many other formulas by which we can find error, but at least इतना तो आप याद रखो. ठीक है, टॉपिक समझ में आ रहा है? पहला टॉपिक. Yes. Yes, sir. Okay, and now let me start a next topic. Maybe after that we'll stop. Okay, ये भी सिंपल टॉपिक है. इसमें यूनिट 2 में ज़्यादा लेंथी पार्ट टॉपिक्स नहीं है, तो क्विकली हो जाते हैं 10-15 मिनट में ही. ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट पार्ट. सो अभी आप देखो यूनिट 2 में जो हमने स्टार्ट किया था, पहले हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ एरर. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर और डिफरेंट फॉर्मूलेज टू फाइंड द एरर प्रेजेंट इन द गिवन मॉडल. तो ये हमारा पहला टॉपिक था. नाउ द नेक्स्ट पार्ट. ओके, ऑलरेडी मैंने इस पे थोड़ा बहुत इनिशियली डिस्कशन आपके साथ किया था कि वेट्स को इनिशियलाइज करना भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपको उस मॉडल को परफेक्ट फिट करना है. ओके, एट दैट ANN मॉडल में बेसिकली आपको करना क्या है, जो आपका प्रॉब्लम है या जो आपके पास डाटा आ रहा है रेडीमेड, उसको आपको मॉडल के थ्रू फिट करना है. ओके, दैट इज द रिक्वायरमेंट. ओके, in this case we need to fit a given data. Okay, in this case we need to fit a given data with the model, है ना. मॉडल के साथ आपको उसको फिट करना है. दैट इज अवर रिक्वायरमेंट. एंड वो जो फिटिंग होगी उसमें वेट्स को इनिशियलाइज करना या वेट्स की प्रॉपर वैल्यू लेना उतना ही इंपॉर्टेंट है. ओके, और आपको मैंने एक एग्जांपल से एक्सप्लेन भी किया था कि अगर आपको ये पता चलता है कि आपके फाइनल जो वैल्यूज थे, फाइनल वेट्स के जो वैल्यूज थे, ओके, वो वैल्यूज अगर से 1 और 2 आ रहे हैं, दिस आर माई फाइनल वैल्यूज ऑफ वेट्स, और आपने इनिशियली जो वेट्स लिया था वो अगर आपने ये लिया है लाइक से 10 and 12, then it takes time. Okay, then we need a lot of iteration to approach 10 to 1, क्योंकि आप फिर वहाँ पे हेब लर्निंग रूल, परसेप्ट्रॉन रूल, देयर आर डेल्टा लर्निंग रूल, डिफरेंट मेथड्स का यूज करके फिर आप उसको अपडेट करने वाले हो, है ना. हाउ टू अपडेट अ वेट्स वो आपने ऑलरेडी कवर किया. ओके, सो इफ यू इनिशियलाइज अ वेट्स लाइक दिस, ये अगर आपने इनिशियलाइज करते हो आप, and later on we will come to know that W1 is going to approach, or W1 is going to approximate or going to approach to 1, and जो W2 था वो कहाँ पे जाने वाला है, 2 पे जाने वाला है. बट आप देखो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है. तो ऐसे केसेस में वी नीड अ लॉट ऑफ इटरेशन टू अप्रोच और टू गेट दोज फाइनल वेट्स फॉर द गिवन मॉडल. तो इसलिए इनिशियलाइज करना भी उतना इंपॉर्टेंट है. अभी ये तो क्लियर है. ओके, ऐसी कोई थ्योरी नहीं है या ऐसा कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है जिसका यूज करके आपको ये समझ में आएगा कि दिस आर माई इनिशियल वेट्स. पहले तो ये याद रखो. एट द एंड हम क्या करने वाले हैं, एट द एंड हम रैंडमली ही हम इनिशियलाइज करने वाले हैं. एट द एंड we are going to take a random values to initialize the weights. ये तो अभी क्लियर है कि अभी मैं कुछ आपको रिजल्ट्स देने वाला हूँ, बट एट द एंड उन रिजल्ट्स का भी अगर आप यूज करते हो, जो आपका सिलेक्शन होगा या जो आपका इनिशियलाइजेशन होगा वो रैंडमली होगा. इसका मतलब क्या है कि हर एक स्टूडेंट अपने हिसाब से वहां पे वेट ले सकता है. ठीक है, बट अभी आपको मैंने पहले क्लियर किया था, आई डोंट वांट दिस केस, मुझे इतना लार्ज डिफरेंस नहीं चाहिए. तो मुझे कुछ ऐसा एक स्पेसिफिक मेरे पास ऐसे कुछ स्पेसिफिक टूल्स चाहिए या कुछ फॉर्मूले चाहिए जिसका यूज करके एटलीस्ट विद लेस नंबर ऑफ इटरेशन या विद इन अ लेस टाइम आई मस्ट गेट द रिक्वायर्ड वेट्स. ठीक है, तो वो कैसे करना है उसकी ये थियरी. ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, हाउ वी इनिशियलाइज आवर वेट्स. अगेन आई विल टेल यू, यहाँ पे इसका यूज करके फिर भी इनिशियलाइजेशन रैंडमली ही होगा, बट एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आएगा कि चलो इस इंटरवल में से मुझे वैल्यूज लेने. मैं आपको अभी क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे जाके, आपको मैं ऐसे कुछ रिजल्ट दूंगा जिसका यूज करके आपको ये समझ में आएगा कि जो भी इनिशियलाइजेशन आपको करना है, वेट्स का जो भी इनिशियलाइजेशन आपको करना है, एक पर्टिकुलर इंटरवल में ही करना है. इस इंटरवल के बाहर नहीं जाना है. क्यों नहीं जाना है? क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी. ऐसा हो सकता है कि आप इतना आउटसाइड जाओगे कि फिर उससे एक्चुअल वेट को अप्रोच करना डिफिकल्ट हो जाएगा. तो आपको मैं बस एक रेंज देने वाला हूँ वेट्स इनिशियलाइजेशन में. आई विल जस्ट गिव यू अ रेंज. ओके, फॉर एग्जांपल ये मेरी रेंज है 0 to 1. टेक दिस एज अ रेंज एंड टेक एनी 5 वेट्स फ्रॉम दिस रेंज. और फिर आपको पता है नंबर ऑफ वेट्स इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वेट्स इज डिपेंड ऑन व्हाट, नंबर ऑफ इनपुट्स ना.
हर एक इनपुट एक वेट के साथ आगे जाने वाला है ना, तो जितने इनपुट्स रहेंगे उतने आपके वेट्स आने वाले। तो फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 5 इनपुट्स, फॉर एग्जांपल इफ आई कंसीडर अ मॉडल लाइक दिस, ओके, अभी मुझे पता नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इफ आई कंसीडर अ मॉडल लाइक दिस, okay, w1 w2 and w3, now I need to take a random values for these weights w1 w2 w3, और मैंने कंडीशन क्या डाली है, take these weights from this interval, take these weights from this interval, so can you tell me what are your choices? तो वो कैसे लेना है, उसके लिए ये थियरी है, ओके। अभी आपको मैंने इतना तो एक्सप्लेन किया है कि ये जो भी वेट्स आपके आएंगे ये इस इंटरवल में से आने वाले, बट हाउ यू टेक दोज वैल्यूज फ्रॉम दिस इंटरवल, उसके लिए भी कुछ थियरी है। सो लेट मी रीड दैट फर्स्ट। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, वेट्स शुड बी स्मॉल, ओके। जितने आपको मैंने पहले बोला ये कंप्यूटेशन का खेल है पूरा, ठीक है। तो जितना नंबर आप लार्ज लोगे उतना उतनी एडजस्टमेंट आपके लिए डिफिकल्ट होगी, ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर वेट शुड बी स्मॉल, जितने स्मॉल वैल्यूज जितना स्मॉल हो सकता है उतना स्मॉल आपको लेना है, ठीक है। लार्ज वेट्स cause exploding gradient problem especially while using sigmoid activation function, ठीक है। उनका ये कहना है कि लार्ज वेट अगर आप सिग्मॉइड फंक्शन के साथ जाते हो देन इट क्रिएट अ प्रॉब्लम बेसिकली, ओके। लार्ज वेट में when you consider a sigmoid function for a large weight, so obviously it may work for the other activation function, okay, but in general if you consider if you talk about the values, so it is always better to go with the small weights, ठीक है। उन्होंने एक केस में प्रॉब्लम एक्सप्लेन की कि एक्टिवेशन फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसा नहीं कि मतलब मे बी अदर एक्टिवेशन फंक्शन से वो सॉल्व हो भी जाएगा, बट इन जनरल इफ यू कंसिडर, सो इन जनरल वी हैव टू ऑलवेज गो विद द स्मॉल वेट्स, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट, तो ये क्राइटेरिया ऑलरेडी हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया है, सो आपको इस पे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ओके। क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि नाउ वी हैव सम रिजल्ट्स, वी हैव सम फॉर्मूलेज बाय विच वी कैन डिसाइड द रेंज फॉर द गिवन मॉडल। इस मॉडल के लिए मेरी रेंज क्या होगी, इस मॉडल के लिए मेरी रेंज क्या होगी, तो ये प्रॉब्लम ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है। तो अभी आपको ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कि स्मॉल और ह्यूज कैसे डिसाइड करना है। सो मैं आपको डायरेक्टली एक रेंज दूंगा, उस रेंज में से आपको वैल्यूज लेने, ठीक है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस फर्स्ट केस, बट इन जनरल ऑलवेज रिमेंबर वेट शुड बी स्मॉल। नेक्स्ट कंडीशन, वेट शुड नॉट बी सेम, वेट शुड नॉट बी सेम मतलब क्या है कि अगर आपने W1 को 0.2 असाइन किया है, तो W3 को अगर आप फिर से 0.2 असाइन करते हो, देन इट क्रिएट अ प्रॉब्लम, या उससे लर्निंग नहीं हो सकती, ओके। सो आप देखो, सम वेट्स विल प्रिवेंट द न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम लर्निंग न्यू फीचर्स, ठीक है। उससे क्या होगी, लर्निंग आपकी स्टॉप हो जाएगी, दैट इज द प्रॉब्लम विद द सेम वैल्यूज। तो जितने भी वेट्स, इफ देयर आर 10 वैल्यूज, इफ देयर आर 15 वैल्यूज, जितने भी वैल्यूज आने दो, ऑल दोज वैल्यूज मस्ट बी डिस्टिंक्ट, सारे वैल्यूज आपको डिफरेंट ही चाहिए, ओके। दे शुड नॉट बी सेम। ये आपकी सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या है, वेट शुड हैव अ गुड वेरिएंस। कैन यू टेल मी हाउ वी एंश्योर दिस पार्ट, how we ensure this part? Weight should have a good variance. I know that you don't have a statistic in your syllabus, but can you tell me how we ensure this condition as per your knowledge? Weight should have a good variance. कैसे आप, या इस स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, that is my question. I cannot explain this part using statistic, क्योंकि आपको statistic part नहीं था, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑन ऑल या वेरिएंस एक पर्टिकुलर टॉपिक है आपने, बट 12th में तो लर्न किया होगा, आई होप, ओके। बोलो, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी हाउ वी एंश्योर दिस कंडीशन? जैसे मैंने सेकंड को कैसे एक्सप्लेन किया कि वी कैन नॉट टेक अ सेम वैल्यूज, ओके, बट हाउ यू एंश्योर दिस पार्ट? इट मस्ट हैव अ गुड वेरिएंस, मींस व्हाट? इट मस्ट हैव अ गुड वेरिएंस, ओके। लेट मी गिव यू दिस थ्री वैल्यूज, ओके। आप मुझे बोलो कहाँ पे आपको गुड वेरिएंस दिखाई दे रहा है। सो मुझे एट द एंड W1 W2 W3 को सिलेक्ट करना है, तो एक में वैल्यू ले रहा हूँ W1 की 0, W2 की वैल्यू में ले रहा हूँ 0.9 एंड W3 की वैल्यू में ले रहा हूँ 0.95। ये एक मेरा सेट है, ये एक सोल्यूशन है। सेकंड सोल्यूशन में आपको ये दे रहा हूँ W1 इज 0.3, W2 इज 0.7, सॉरी W2 एंड W3 से 0.92। एक केस मेरे पास क्या है 0.9 0.95, एक केस मेरे पास क्या है 0.3 0.7 एंड 0.92।
So tell me where in first case, and this is my second case, where you feel the weights has a good variance. Bolo. Where you feel weights have a good variance. बोलो फर्स्ट केस या सेकंड केस, बोलो जल्दी. वेयर यू फील वेट्स हैव अ गुड वेरिएंस. यस, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बोलो. आर यू देयर और नॉट? ओके, हाँ, लेट मी एक्सप्लेन अगेन. ओके, आंसर मुझे आपसे ही चाहिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करता. ओके, मुझे W1, W2, W3 के वैल्यू सेलेक्ट करने हैं. सो मैं फर्स्ट सेट ले रहा हूँ. W1 इज 0, W2 इज से 0.9, W3 इज 0.95 एंड एक सेट में और दे रहा हूँ आपको. W1 इज 0.3, W2 is say 0.7 and W3 is 0.92. Now you tell me where you feel weights have a good variance. First case या second case? बोलो. Am I audible? Am I audible or not? Sir, first. Yes, sir. हाँ, ओके. फर्स्ट केस में ज्यादा गुड वैरियंस दिखाई दे रहा है, सेकंड केस में? फर्स्ट केस में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 0 to 1 आपकी रेंज थी, बट आपने रेंज कैसे लिए? एक्सट्रीम वैल्यूज लिए ना. एक तो डायरेक्टली 0 के क्लोज है और एक तो डायरेक्टली 1 के क्लोज है. प्रॉपर वैरियंस दिखाई दे रहा है क्या आपको? वैरियंस इज वेरी मच सिमिलर टू लाइक अ नॉर्मलाइज वैल्यूज आपको लेने हैं. क्या होता है, एडजस्टमेंट तभी जल्दी होगी ना अगर आपके पास 0.5 है ही नहीं. अगर आपको पता है कि 0.5 एक वैल्यू है जिससे मॉडल आपका जल्दी एडजस्ट हो सकता है, बट अगर आपने ये लिया है 0.9 और 0.95, तो 0.5 पे आने के लिए भी ज्यादा टाइम जाएगा ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपको पता कि 0.5 आपका बेस्ट एडजस्टमेंट फैक्टर था, बट अगर आपने 0 और 0.9 और 0.95 सारे 9 के आगे, 0.9 के आगे, तो उससे 0.5 पे एडजस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. बट अगर आप ये सेकंड सेट लेते हो तो आपको पता है कि ये 0.7 जल्दी 0.5 पे अप्रोच हो सकता है. तो यहां से एडजस्टमेंट करना थोड़ा आपके लिए इजी होगा. दैट इज नथिंग बट अ गुड वैरियंस. ओके, इट वैरियंस तो चाहिए. वैरियंस इज नथिंग बट डिस्पर्शन होता है. डिस्पर्शन जैसे सारे वैल्यूज डिस्पर्स होने चाहिए, बट having it must have a good variance. Good variance means extreme values नहीं चाहिए हमें. मतलब एक तो डायरेक्टली 0 और एक तो डायरेक्टली 10. या अगर आपको एक वैल्यू आपने 0 असाइन की, एक वैल्यू 10, एक वैल्यू 10.1, एक वैल्यू 10.2, सो ये ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, सो आई डोंट वांट दिस टाइम. ओके, सो क्लियर हो गया यहाँ तक क्या क्या एक्सप्लेन किया है. तो जो भी वेट्स आप सिलेक्ट करने वाले हो, फर्स्ट ऑफ ऑल दे मस्ट हैव द वेट्स मस्ट बी स्मॉल. सेकंड, दे मस्ट नॉट बी सेम, है ना, इक्वल नहीं चाहिए. एंड थर्ड कंडीशन, इट मस्ट हैव अ गुड वैरियंस. गुड वैरियंस का मीनिंग आपको मैंने एक्सप्लेन किया है. तो ये स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज से नहीं है, एक सिंपल जनरल वे में आपको मैंने एक्सप्लेन किया. ठीक है, ओके. आई थिंक वी नीड सम टाइम फॉर दिस. टाइमिंग क्या था? 9:50 तक ही है क्या? Yes. Okay, so let's Yes, sir. start. Okay, I think you have next lecture.